Hello everyone, my name is Aksha. Welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 11, in our previous lecture we have discussed about the cell type, cell structure, cell organelles. I have given you an overview about the cell and its contents, many of the cell organelles and the cell types. In today's class I am going to explain you about one of the cell type, and they are prokaryotic cells. So in the previous lecture we have also discussed about the basic differences between the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. The term prokaryotic, pro means primitive, karyon means nucleus, which we have already discussed in our previous lecture, right? So prokaryotes are those which are having or not having well defined nucleus or न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जिनमें किसी भी तरह की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट. Neither mitochondria, Golgi complex, lysosomes, they all are absent in case of prokaryotic cell. Right? You know what? These are the very simple cells. All the moneras, bacteria, the simpler organisms, they all are come or categorized under these prokaryotes. They are represented by bacteria. All the bacteria, all the monerans comes under prokaryotes. Then blue-green algae. Now, why the name is algae? Algae are the simplest plants, na? But these are not plants. Its other name is cyanobacteria. Again, algae इसलिए कह सकते हैं because they are able to synthesize their own food with the help of sunlight, right? तो bacteria, blue green, algae, the smallest living cell, mycoplasma. ये भी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था. Mycoplasma are the smallest living cell, है ना? It's चलो साइज और की डिस्कस अभी करते हैं बाद में. And PPLO. Either mycoplasma and PPLO are one of the same thing, but in your NCERT they have given differentiate mycoplasma and PPLO. So PPLO, what is PPLO? Its full name is pluro pneumonia like organisms. So you have to remember these terms as well. PPLO, pluro pneumonia like organisms. And you know what? All the prokaryotic cells, they may vary greatly in their shapes and in their sizes as well. थोड़ा सा मैंने आपको साइज के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल है, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम, अगर हम बात करें, हमने जनरली किया था 3 to 4 माइक्रोन्स इन साइज. और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूजुअली बैक्टीरिया आर हैविंग 1 to 10 माइक्रोन्स साइज में आते हैं. बट आपकी एनसीईआरटी में देयर इज गिवन द साइज ऑफ द टिपिकल बैक्टीरियल सेल दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to 2 माइक्रोन्स. दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. 1 to 2 माइक्रोन्स. तो आपको ये भी याद करना है, इसकी 3 to 5 माइक्रोन्स की रेंज भी आ सकती है, 1 to 2 माइक्रोन्स की रेंज भी आ सकती है. क्यों? बिकॉज दिस रेंज इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू and usually tell you that NCERT is very important. आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, NCERT नीट NCERT में से ही क्वेश्चंस आएंगे. सो डू फोकस इन योर NCERT एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन. 1 to 2 माइक्रोन्स रेंज ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल. उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है विच इज अवर माइकोप्लाज्मा, दैट रेंजेस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली इट्स साइज इज 0.3 micrometer, and I have also told you that these can pass through the bacterial filters, because usually bacterial filters are ranging, or usually their size is 2 microns, right? So they can pass through the bacterial filters, and this is one of the very important question. उसके बाद PPLO, जैसे मैंने आपको बताया that these are one and the same thing, but आपकी NCERT में अलग से given है, तो आपको ये अलग से ही करना है. PPLO का जो size given है that is 0.1 micron of PPLO. So this again you have to learn.
And you know what we used to say, that the smallest living cell, mycoplasma, that size is obviously it is the smallest, that means it is having the small size, that is 0.3 micron, इससे छोटा कुछ नहीं है. But there are some viruses whose size ranges from 0.02 to 0.2 microns, that is more smaller than mycoplasma. Mycoplasma से भी छोटे हो गए 0.02. Then why still mycoplasma are considered to be the living cell? Now it is due to the very unique characteristic feature of viruses. What is that? आज के टाइम में तो वैसे भी इस क्वारंटीन में हम वायरस का नाम सुनते हैं, हमारे मन में दिमाग में एक ही वायरस आ जाता है, कोरोना वायरस, राइट. इवन दैट दो, वो भी viruses are neither considered as a living entity nor as a non-living body. Because अब ये social distancing क्यों है? क्योंकि that virus requires a host to survive on. Viruses जो है ना, they are said to be acellular. Please remember this term. It is very 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 important. अब तो वैसे viruses टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो जस्ट फोकस ऑन viruses are considered to be acellular because they act as a connecting link between living and non-living. देखो उनको जैसे ही हम अगर किसी कोई होस्ट मिल जाता है, दे डोंट हैव देयर ओन मशीनरी, दे यूज इट्स होस्ट मशीनरी फॉर इट्स सर्वाइवल एंड देन फंक्शन. तो अगर इनको कोई ह्यूमन होस्ट या कोई भी होस्ट मिल जाता है, तो उसकी बॉडी में जब ये एंटर करेंगे, देन दे आर लिविंग, देन दे आर एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. बट जैसे ही अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे सरफेस पे ये ज़्यादा देर तक दे कैन नॉट सर्वाइव. That is how they perform function. That is how they are not considered as a living or non-living. This is the unique character. That is why we used to say that smallest living cell is mycoplasma, which ranges from an approximator having the size of 0.3 micrometer. Either viruses are much lesser in size range from that of mycoplasma. I hope this point is clear to all of you, and this is very 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 important. अच्छा, इसके अलावा कुछ यूकैरियोट्स के साइजेस के बारे में बात भी की गई है. यूकैरियोट्स के साइज रेंज भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है. मोस्ट ऑफ द रेंज गिवन इन योर एनसीईआरटी इज 10 माइक्रोन्स टू 20 माइक्रोन्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. हालांकि 20 माइक्रोन्स से ज़्यादा भी होते हैं साइज में सम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बट दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो आपको ये रेंज याद करनी है. ऑलराइट. और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कुछ और साइज भी डिस्कस किए थे. जैसे मैंने आपको बताया था, जो 7 माइक्रोन है, दैट इज द साइज ऑफ, यू रिमेंबर, ह्यूमन आरबीसीज, राइट. जो हमारा लॉन्गेस्ट सेल है ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज न्यूरॉन्स, राइट. लार्जेस्ट सेल इन आवर सराउंडिंग्स, दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा समझा है तो. So coming on to our point, तो these are the, जैसे मैंने कहा, जो prokaryotic cells है, they may vary greatly in their size. So these are some of the sizes of them, right? And also they may vary greatly in their shapes. Again, one of the very important topic of this chapter. बहुत important है ये shapes. अगर हम shapes की बात करें, तो वो भी prokaryotic cells में अलग अलग हो सकती हैं. लेट्स सपोज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियाज की जो शेप्स हैं बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से हम जो 4 बेसिक शेप्स हैं, जस्ट डू रिमेंबर दैट द वेरी 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, देन दे आर, नंबर 1, दे कुड बी कोकाई शेप. यस, व्हाट इज दिस कोकाई शेप? कोकाई इज जस्ट, दे कुड बी स्फेरिकल इन शेप, जस्ट स्फेरिकल. Spherical means the cocci, जैसे rounded bodies. ये coccus है. Cocci is the plural form. Coccus is the singular form. It could be coccus. It could be, अगर मैं इसके सिंगल के साथ ये 2 कर दूँ, ये 2 हो गए, then it is called as Diplococcus. अगर मैं इसकी पूरी चेन बना दूँ, then it is called as Streptococcus. ये टर्म्स याद करनी है आपने. अगर मैं इसकी 2 डायमेंशनल शीट कर दूँ, है ना, अगर 2 डायमेंशनल शीट हो जाए पूरी की पूरी, ये पूरे कवर हो जाए, तो देन दैट इट इज कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकस. देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ कोकस जिसमें हम
it includes only the cube, forming the cube, having 8 structures, 8 coccus लेकर अगर cube बनाए, then that form of coccus is called as sarsinum. So basic 4 shapes of bacterial cell, cocci and rest others we are going to discuss. तो cocci के आगे further it could be having the different shapes. Getting my point? Alright, after cocci, है क्या cocci shape? Just spherical in shape. After cocci, the next could be the bacilli shape. Again, bacilli is the plural term. Its singular is bacillus. कैसी होती है इनकी shape? They are rod shape. Rod shaped होते हैं, इस तरीके से होते हैं, bat shaped और the rod shaped. इनके बीच में there is also the presence of an endospore. Endospore is present inside them. आपको पता है जो बैक्टीरियाज है ना, इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दे कैन बी ऑब्जर्व्ड और थोड़ा बहुत हम उसको जान सकते हैं बाय देयर नेमिंग. अगेन जैसे मैं आपको अपने हर लेक्चर में कहती हूँ, बच्चे टर्मिनोलॉजी, उनके नाम पे फोकस करो, उसके नाम में घुस जाओ, देखो कहाँ से क्या मिल रहा है आपको. अगेन जैसे देयर इज वन बैक्टीरिया जिसमें बैसिलस आता हो, इज वेरी कॉमन. लैक्टोबैसिलस का नाम सुना? लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस है तो इसके नाम से ही हमें पता लगे इसकी शेप कैसी होगी बैक्टीरिया की, रॉड शेप. व्हाई? बिकॉज ऑफ बैसिलस. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म स्ट्रेप्टोकोकस. देयर इज वन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. This Streptococcus pneumoniae is the name of bacteria which causes pneumonia, right? तो इसके नाम से हम पता लगा लिया कि Streptococcus, इसका मतलब these are spherical shape having a long chain. क्योंकि मैंने आपको बताया Streptococcus क्या होते हैं, which forms the chain of the coccus. I hope you do understand. तो नाम से काफ़ी हम उसकी observations कर सकते हैं. One of the bacteria, bacilli bacteria is Clostridium tetani. Clostridium tetani is the bacteria which causes tetanus. Okay, next after bacilli, the third shape that could be vibrio. Vibrio shape. अब ये vibrio shape कैसी होती है? It is a comma shape. इस तरीके से comma shaped होते हैं ये vibrio. And again इसके नाम से भी there is one bacteria which is vibrio कॉलेरा. तो आई होप इसी से आपको थोड़ा एस्टिमेट हो गया होगा कि कौन सी डिसीज करता है. इट डिसीज इज कॉलेरा, राइट. फोर्थ कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो एंड लास्ट इज द स्पाइरलम. स्पाइरलम शेप. अब ये भी अपने नाम से ही है स्पाइरलम शेप, तो मस्ट बी हैविंग अ स्पाइरल स्ट्रक्चर. इट कुड बी हैविंग अ स्पाइरल शेप. स्पाइरल शेप किस तरीके से होती है? स्पाइरल शेप और इसके एंड्स में देयर आर प्रेजेंस ऑफ सम फ्लैजेलास. फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस बैक्टीरिया ट्रिपोनेमा पैलिडियम. ये मैं कॉमन वाली बता रही हूँ. Treponema pallidum is the name of bacteria which is spiral in shape. It causes the disease syphilis. Do you know what syphilis is? It is the bacterial STD, sexual transmitted disease. Alright, so this is how the prokaryotic cells could vary in their shapes as well, and the 4 very basic shapes are these: cocci, bacilli, vibrio and spirillum. Okay. अच्छा, आपको पता है, मैंने आपको बताया जो prokaryotes हैं, they are mostly include all the type of bacteria and monoderms. What are they? They are unicellular, right? मतलब एक ही सेल है, single cell. This single cell has to work, है ना, एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी है वो एक ही सेल में परफॉर्म हो रही है. इसका मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर हैविंग वेरी हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. डू रिमेंबर दिस टर्म, दिस इज इन योर एनसीईआरटी अगेन. हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. हमने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है एनसीईआरटी में से. हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैसे? क्योंकि एक ही सेल है. अब किसी सेल में किसी तरह की रिएक्शंस हो रही है, किसी सेल में किसी तरह की रिएक्शंस हो रही है, बिकॉज दे वेरी ग्रेटली, राइट. तो हर एक सेल में इतनी तरह के मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. ओके. अब हम थोड़े से प्रोकैरियोटिक सेल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और व्हाट आर द
main organelles or the structures, what is actually the prokaryotic cell is made up of, what does the bacterial cell containing, which type of organs or the types or the cells or the structures. So prokaryotic cell, let's take an example of bacterial cell or any prokaryotic cell. In majority of the, almost all the bacterial cells are having the outer wall named as cell wall. Yes, आपने पढ़ा था one of the difference between, मैंने आपको बताया था plant cell और animal cell के केस में, that the basic difference is the presence or absence of cell wall. In case of plant cell, cell wall is present, but in case of animal cell, cell wall is absent. So all the bacteria they do have cell wall except, bio है exception के बिना तो काम ही नहीं चलना, mycoplasma. फिर इसके आगे mycoplasma क्या था? It is the smallest living cell, right? इसमें cell wall present नहीं होती. That is why I'm saying it again. These mycoplasmas are called as प्लियोमॉर्फिक. देखो सेल वॉल का पहले मैं प्लियोमॉर्फिक का मतलब समझाता हूँ. प्लियोमॉर्फिक होते हैं विच कैन ऑल्टर्स देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टर्स, जो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने मॉर्फोलॉजी को, अपने कंटेंट को. अब व्हाट हैपेंस इन दिस केस, व्हाई दे आर सेड टू बी प्लियोमॉर्फिक? क्योंकि यूजुअली बैक्टीरिया सेल्स आर हैविंग सेल वॉल, जैसे हमने बात की. अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? इट गिव्स द शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, है ना, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है. लेकिन जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इट कैन ऑल्टर इट्स मॉर्फोलॉजी. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी प्लियोमॉर्फिक. डू रिमेंबर? अगेन इम्पॉर्टेंट. अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. वैसे ही सेल वॉल हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है, किसका बना हुआ है. थोड़ा सा मैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बता देती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो सेल वॉल है ना, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन. यस, ये पेप्टाइडोग्लाइकैन के बने होते हैं विच इज हैविंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वन इज NAM, one is NAG. Now what are these NAM and NAG? NAM is N-acetyl muramic acid. I hope आप साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हो समझने के साथ. And NAG is N-acetyl glucosamine. These are the constituents of peptidoglycan who provides the chemical composition to cell wall of bacteria. This is again one of the very important. और नहीं समझ आई अभी तो you have to learn these terms, right? समझाऊंगी इसको अपने अपकमिंग लेक्चर में जिसमें पूरा सेल वॉल अलग से डिस्क्राइब करूँ. ओके, आफ्टर द सेल वॉल, अच्छा मैंने आपको बताया था जो सेल है दे आर हैविंग बेसिक 3 फीचर्स, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, राइट? तो अगर हम इसकी भी बात करें, इट इज ऑल्सो हैविंग द इनर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट in case of bacterial cell, this plasma membrane is having some enfoldings inside. Yes, these enfoldings, and these enfoldings are called as mesosomes. What is this fold? It is a plasma membrane, right? Cell membrane जिसकी आप बात करते हो हर एक सेल में प्रेजेंट होती है, इसमें भी है. लेकिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनवेजाइनेशंस, इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं. They are called as mesosomes, and these mesosomes contain some respiratory enzymes. देखो यूजली रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होते हैं, बट इसमें तो हमने बात की है किसी भी तरह की ऐसी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड. तो these mesosomes contain respiratory enzyme. Okay, afterward the next feature after plasma membrane is the nucleus, है ना? बट हमने अभी बात की थी प्रोकैरियोट्स तो वो हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, लेकिन इनमें कोई ना कोई तो जेनेटिक मटेरियल होगा. then that rough irregular genetic material which is present inside the prokaryotes, that is called as nucleoid. Do you remember Ajay? Nucleoid जो है it is not having any confined nuclear membrane. इसके आसपास कोई nuclear membrane नहीं है. जैसे यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज द प्रेजेंस ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड. व्हाट डज दिस न्यूक्लियोइड कंटेन? इट इज हैविंग द सिंगल क्रोमोसोम.
ओके, सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में लीनियर होता है, वो हम डिफरेंसेस में करेंगे। तो याद रखना, इट इज हैविंग अ सिंगल क्रोमोसोम हैविंग सर्कुलर डीएनए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियोइड, ये तो हो गया इसका जीनोमिक पार्ट, है ना, जेनेटिक पार्ट है, न्यूक्लियस नहीं है जी तो न्यूक्लियोइड में है। लेकिन हियर आर सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जेनेटिक मटेरियल apart from this genomic material. Outside this genomic DNA, some small extra chromosomal portions are present and they are called as plasmid. This is very 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 important, very important. What is this plasmid? Plasmid is extra chromosomal. क्यों extra chromosomal क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि it is outside the genomic DNA. उस genomic DNA में नहीं है, उसके बाहर है, तो it is considered to be the extra chromosomal. It is double stranded, double strand DNA होता है इसका, होता सर्कुलर ही है, double strand circular DNA. अच्छा, what is the function of this plasmid? ये plasmid के ना मतलब जैसे बैक्टीरियाज है, it is providing a very unique phenotypic feature to the bacteria. It act as an antibiotic resistance. It provides a tolerant capacity, resistance towards the antibiotics. आपने सुना होगा जो बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। एंटीबायोटिकली वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर देती है एंड देन बैक्टीरिया विल गेट डाई। लेकिन जिन बैक्टीरियाज में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, दे आर वेरी हेल्पफुल टू प्रोवाइड द टॉलरेंस पावर और द रेजिस्टेंस टू सम एंटीबायोटिक्स। तो दिस इज द वन एडवांटेज। दूसरा, प्लाज्मिड जो है ना, इट इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे ये सारा कुछ। उसमें क्या है, जो प्लाज्मिड है ना, इट एक्चुअली कन्फर्स द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए। मतलब कोई फॉरेन जीन है, डीएनए है, यू नीड टू इंसर्ट इनटू योर डिजायरेबल होस्ट, आप किसी में डालना चाहते हो तो वो ऐसे नहीं डाल सकते। फर्स्टली इट हैज़ टू बी linked up with the plasmid vector and then it will associate into the inside the host cell. ये नहीं समझ आ रही हो, नहीं समझ आ रही अगर जस्ट फॉरगेट इट, बट कंफ्यूज मत होना, ये अब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ प्लाज्मिड की बात करो, है क्या? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कहाँ पे प्रेजेंट है? अपार्ट फ्रॉम दिस जीनोमिक, आउटसाइड दिस जीनोमिक डीएनए। फंक्शन क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कई बारी प्रोवाइड करता है और कई बारी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन जीन के साथ भी ये इट कन्फर्स। ओके, अब आफ्टर दिस प्लाज्मिड, अब हमने बात की सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियोइड हो गया, एंड दिस होल कंटेंट इज मेड अप ऑफ दिस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। एंड दैट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, व्हाट इज दैट? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मैंने बताया था क्या होती है? साइटोप्लाज्म, राइट, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती नहीं है। बट आई यूजुअली यूज दिस टर्म बट। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द वन ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स एंड दे आर राइबोसोम्स। एक्चुअली राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, अटैच्ड एंड फ्री। जो हमने यूकैरियोट्स में देखा था कि न्यूक्लियस से राइज हो रहे हैं, दे आर द अटैच्ड, लेकिन प्रोकैरियोट्स में दे आर फ्री राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। आपको पता है राइबोसोम के भी ना दो यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है। बट अगेन अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं एक एक चीज़, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, राइबोसोम्स, हर ऑर्गेनेलिज जो है एक एक करके अपनी अपकमिंग लेक्चर्स में आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। सो यू रियली डू नॉट नीड टू वरी, बस अभी जो समझा रही हूँ उसको पूरी तरह से ग्रैस्प करने की कोशिश करो। तो आफ्टर राइबोसोम्स देयर आर आल्सो सम यूनिक फॉर्म्स और छोटी छोटी इंक्लूजन्स बॉडीज भी होती हैं, इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट। Again, I'll explain this whole in my upcoming lectures. I hope this is the basic content of the prokaryotic cell कि main उसके क्या proportions हैं, what it is made up of, right? I hope आपको मेरा आज का lecture समझ आया अच्छे से, the terminology which I have introduced अच्छे से इनको learn कर लो, and if you do like my video then do share it with your friends. Keep watching, keep smiling, stay tuned.